Vibes of India. I'm Janvi. I'm Deepal. A new political row has erupted in Gujarat after Congress President Mallikarjun Kharge compared Prime Minister Narendra Modi to Ravan. He said that like Ravan, it seems like Prime Minister Narendra Modi is omnipresent. He is seen in local, state and assembly elections. Today we are going to discuss on this issue and discuss about how there is a history of Congress making stark remarks at Prime Minister Narendra Modi. I am reminded of a conversation we had before we just began this program. Janvi, if you want to narrate of the BJP leader, what he told. Like recently, Prime Minister Narendra Modi said in a sabha that it seems like this time Congress is not abusing him, not using words like niche. But now it seems like Mr. Kharge has finally said something which he should not have said. No, I think what I meant was, a BJP leader telling us that गुजरात में इलेक्शन तभी जमेगा जब कांग्रेस कोई गाली देगी मोदी जी को. And this is what the BJP seems anticipate कर रही थी अजीत जी. बीजेपी ये चुनाव जम नहीं रहा, क्योंकि अपोजिशन से कोई चार्ज नहीं था जिसपे आप चढ़ के बोल सके. उसको मुद्दा बना सके. हिंदी में एक शब्द है चढ़ के बोलना, कि आप उसके ग्राउंड पे जाके खेलिए, आपको कोई जवाब नहीं देगा. अभी तक का जो चुनाव था उसमें जवाब बीजेपी को देना था, और कांग्रेस ने एक योजना बनाई थी और उनके बड़े नेता कहते भी थे कि इस बार हम मैदान में नहीं मोहल्ला में गए, हम बड़ी सभा नहीं गए, बड़े नेता नहीं लाए, हम सीधे वोटर से कनेक्ट हैं. तो मोदी जी ने 11 अक्टूबर को स्वराष्ट्र की सभा में कहा था कि इस बार मुझे गाली देने का ठेका ना दूसरों को दे दिया है. उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस सीधे मोदी जी पे नहीं बोले. ये पूरे चुनाव में अभी तक देखिए तो मोदी जी पे कोई अटैक नहीं. एक बीच में अटैक हुआ, एक मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के लीडर ने बोला था, मधुसूदन ने जो औकात की बात की तो मधुसूदन का कद इतना बड़ा नहीं था, वो अपील नहीं हुआ. हाँ, very true that Madhusudan Mistri's stature is not that big that his comment on Modi's Prime Minister Modi's aukat would really create a furor or invoke emotions. But finally the BJP's expectation and anticipation has been realized, and the Congress has done its job, and the leader of the opposition in the parliament and the Congress president Mallikarjun Kharge has referred to Modi as Ravan. आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर वोट दो, भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है. As Janvi said, like that he meant that like Ravan, he's omnipresent. So was Ravan omnipresent? I think that Mr. Kharge would know better what he meant. But I think Congress should realize that it was a mistake, and that's why again I think they've given a statement that BJP wants to divert the whole issue and bring it to a negative light, and they didn't mean to insult Prime Minister Narendra Modi. See, using toxic language, using indecent phrases, stooping down to a certain level, I think it is not accepted from any party. And Congress in Gujarat, it has made its trademark. And there are two things related to this issue, that the Congress never misses a chance to come up with one statement which Prime Minister Modi adeptly converts it
to an advantage to himself and the BJP. True. Right? If we look at history, in 2007, it was the मौत का सौदागर comment. गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर That really helped the BJP, and which again, like I insist, it was a very tasteless, derogatory remark. Such a word or such a phrase should not be used for the Prime Minister, whosoever the Prime Minister is. आपने सही कहा। ये खड़गे जी की टाइमिंग जो है 2007 को बैक में ले जाइए ना। हाँ, उस समय भी 2 फेज का इलेक्शन था। हाँ। फर्स्ट फेज की कैंपेनिंग की लास्ट मीटिंग थी और साउथ गुजरात में मीटिंग थी, बहुत बड़ा क्राउड था और सोनिया जी ने वो मौत का सौदागर कहा। उसके बाद फर्स्ट फेज तो बिगड़ा, सेकंड फेज जिसते से बिगड़ा। बीजेपी ने 4 दिन में अपने सब वेपन साइट किए, मौत के सौदागर को पंच वेपन कहा, बनाया। उसके बाद जो 2007 का रिजल्ट आया वो 2022 में। अब देखिए कल ये सभा हुई 8 बजे दानवी योगा अहमदाबाद। सुबह से जिसते से बीजेपी ने इसको चलाया। और कुछ चल ही नहीं रहा है, और कुछ मीटिंग्स की सुर्खियां, कुछ मतलब भाजपा भी ये चला रही है और मीडिया भी यही चला रही है। सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। जावड़ ज्ञान 10,000 में जावड़ की इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितनी ये 3-4 दिन में हो गई। But I think this is a very specific trait of Bharatiya Janata Party. कांग्रेस ने इसमें क्लेरिफिकेशन दिया। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारा कहना ये था कि मुद्दों पे बात हो, मोदी जी के चेहरे पे आप कितने चुनाव जीतोगे, है वो हर चुनाव में प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, लेकिन खड़गे जी ये कहेंगे ये बड़ा मिस्टेक है। definitely it is, I will say it is, you know, number one is Ravan is worshipped in certain parts of India, but it is unethical to use That word. this word in a derogatory manner for the Prime Minister of our country. So Kharge is wrong. There is no, वो सीनियर नेता है, हाँ। उनका लंबा एक्सपीरियंस है। पर तो उनमें इतना तो पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए ना कि This will backfire. नहीं, इसमें एट द नेशनल प्रेसिडेंट उनकी फर्स्ट गुजरात में सेकंड इलेक्शन कैंपेन मीटिंग थी। हाँ, और सेकंड मीटिंग में उन्होंने वो कर दिया कि 6 महीना की जो मेहनत थी ना वो पानी में गई। वो पानी में जाती दिखे। और वैसे भी इसमें एक और चीज है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या है, ये हम एक लेवल के नीचे बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मोदी में बात नहीं करेंगे। और आपके नेशनल प्रेसिडेंट, आपकी शिकायत ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी सम्मान नहीं कर रही। इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है उससे आपको आपत्ति है। आप भी तो वही कर रहे हैं। एक पद की गरिमा जो होती है वो खासतौर से गुजरात में जहाँ की वो लोकल बॉय है, अभी वो इसको गुजरात के बेटे से जोड़ेंगे, गुजरात से जोड़ेंगे, वो तमाम चीजें एक इतना बड़ा समीकरण बन जाएगा कि कॉमन वोटर को लगता है कि ये क्या है। But I think BJP loves to play the victim card, and I think Aam Aadmi Party is also in line. मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, ये भी स्टेटमेंट दिया था अबाउट प्राइम मिनिस्टर कि वो हमेशा ये बात लेके आते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए कि मैं चाय वाला था। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी कि हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता, हम तो अछूत है। So, see, Janvi, it is about, you know, political smartness. BJP is politically smart, right? Like what you said about Kharge may be true or is true, and it still holds true for several parts of our country where discrimination is practiced. We cannot deny it. but there's a way to say it. There's a way to say it. There's a way to say it, and there's a way to use it as well. To use it for an advantage, right? Instead To of whip things up backfire. emotions. Yeah, that's one. And Ajit ji ने जैसे बताया, like, you know, Gujarat as such is a very sensitive state. Yeah, and to
when Ram Janmabhoomi issue came up, the highest number of Kar Sevaks went from Gujarat. The highest number of bricks have gone from Gujarat. It's a very personal issue. And then to call the son of our soil, you know, our Narendra Bhai, Ravan, no average Gujarati, even if that person is anti-Modi, is going to accept that this statement should be made or is okay. It is not okay. कांग्रेस के अपने लोग इस बात से वो अब कंप्लेन तो कर नहीं सकते, प्रेसिडेंट की कंप्लेन किसके करने जाए, कोई छोटा मोटा नेता होता तो सस्पेंड कर दिए होते। उनको खुद को लगा है कि इतना कुछ चल रहा था बिना मतलब का इशू आया। दार्जिलिंग लिमड़ा में खड़गे जी की सभा से 5 वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिगड़ा सर। लेकिन पूरे गुजरात में नुकसान हुआ। हाँ, 5 वोट से बहुत ज्यादा नुकसान होगा ये स्टेटमेंट से। पर कांग्रेस का ये हिस्ट्री रही है। अगर हम 2007 से देखें तो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला, फिर हम देखें तो 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच बोला था प्राइम मिनिस्टर को। चाय वाला हम AICC हेडक्वार्टर में मणिशंकर अय्यर, वो तमाम चीजें। और राहुल गांधी ने बोला था चौकीदार चोर है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर चौकीदार चोर तो एक मुहावरा था हिंदी में, वो सामान्य इस्तेमाल होता है, लेकिन बीजेपी को देखिए कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कहा बोफोर्स का ये राफेल का मामला चल रहा था, और 1 घंटे के अंदर तमाम बीजेपी के MP, बीजेपी के मिनिस्टर, सबने अपना स्टेटस, सबका DP सोशल मीडिया स्टेटस जो था मैं चौकीदार हूँ हो गया। हाँ, और वो पूरा इलेक्शन मैं चौकीदार हूँ पे चला। तो आप किस चीज को कितनी अच्छी तरह से यूज करते हैं। but then that is what politics is all about, right? See, 2 things. Number 1 is Congress is wrong and Kharge is definitely not right. He is absolutely wrong in using and referring to Prime Minister as a Ravan, and the BJP is smart. Maybe if it would have been the Congress, शायद किसी ने इतना मार्क भी नहीं किया था, नोटिस नहीं होता। They would have like let go of the whole thing. नहीं, बीजेपी का इस मामले में तो मानना पड़ेगा। आप देखिए कि गोपाल इटालिया के जो भी वीडियो थे वो पब्लिक डोमेन में थे। गोपाल इटालिया को वो कांग्रेस के ज्यादा नजदीक थे, सत्ता में उन्होंने कांग्रेस की मदद की थी, लेकिन गोपाल इटालिया के वीडियो बीजेपी ढूंढ के लाई और स्ट्रेटेजिकली रिलीज कर एक पार्ट वाइज पार्ट उनको तब तक चलाया जब तक कि उनने कतारगाम नहीं पहुंच गए। नहीं, कतारगाम आज भी आया एक वीडियो। पहली चॉइस नहीं थी गोपाल इटालिया की, पहली चॉइस कतारगाम नहीं थी। उनको इतना अटेंड किया कि वो जो कतारगाम की सीट है वो 80,000 की माइनस सीट है, वो एक सेफ सीट ढूंढना चाहते थे सौराष्ट्र। तो बीजेपी ने बड़ी उनकी इस मामले में मानना होगा, नैतिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी भाजपा ज्यादा समझदार और मजबूत है। खड़गे के बयान को नैतिक सही नहीं कह सकते और राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्रिकेट की भाषा में हिट विकेट होता है ना, वो कैप्टन हिट विकेट कह के चला गया। बहुत अच्छा है। Time for the Congress to No, I think there is no time left. It is too late. The damage is done. The damage has been done, and this is the most interesting aspect, that the entire country is really surprised that the Congress did not have this much sense. But in Gujarat, it's a different atmosphere. It's like everybody was expecting कि कब आ रही है, कब आ रहा है वो एक शब्द जो मेन अटेंशन कैचिंग मुद्दा हो जाएगा, जो विकास को साइड पे रख देगा, जो और सब कुछ चीजों पर। रावण is what now Gujarat elections 2022 is going to be on. Definitely. अब ऑन नहीं बचा। अब इलेक्शन ऑन नहीं है। ऑन तो तब होता है जब दूसरे के लिए संभावना होती है। आप हिट विकेट हो चुके हैं।
So I think now, see, even an apology does not matter. Okay, we are. It cannot work and it should not work, because this is a very serious statement made by the national president of India's oldest party, the main opposition Congress. It cannot be condoned in any manner, right? We have talked about the issue in a light-hearted manner, but that does not Make it any less in serious. any way, decrease the seriousness of the issue. Usage of toxic language in any electoral battle बिल्कुल Is not is wrong. It cannot be justified, it cannot be condoned. जिस शब्द को आप सामाजिक जीवन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो शब्दावली आपके सामाजिक जीवन में नहीं इस्तेमाल हो, वो राजनीतिक जीवन में बिल्कुल नहीं हो सकती, और कम से कम गुजरात में तो बिल्कुल कहीं भी, गुजरात ही क्यों, गुजरात गुजरात में इसलिए नहीं हो सकती है कि दूसरी जगह यदि एक अटैकिंग मोड चलता है, गुजरात का पीपल जो है ना, आपने Very कहा sensitive. वो बहुत सेंसिटिव है, वो अच्छा बुरा वो विवाद में नहीं पड़ता, वो अपना डिसीजन दे देता है। यूपी बिहार में एक दूसरे के ऊपर अटैक होते हैं, लीडर करते हैं, बाकी जगह साउथ में चलता है तो उस पर क्राउड शामिल होता है, यहाँ पे लोग डिसीजन देता है, वो व्यापारी है, वो लड़ेगा नहीं, वो अपना निर्णय दे देगा, आप बोलने लायक नहीं बचेंगे। And Gujaratis are known, for their restraint on language. गुजरात की जो भाषा है उसको अपने भाषा पे सम्मान है और गौरव है, और उसको अपने गुजराती कल्चर पे गौरव है, और खड़गे जी ने ये जो कहा है, अब देखिएगा सेकंड फेज में इसका असर होगा। जमीन पे दिखेगा। पर अभी तो फर्स्ट फेज भी नहीं हुआ, हम सेकंड ऐसा फेज दिख रहा है। सेकंड फेज की जैसे जैसे कैंपेनिंग में जाएगी, वैसे ये मुद्दा सेकंड फेज की कैंपेनिंग का एक तरह से कैच फ्रेज यस पूरी तरह से वो उनको वो बिंदु मिल गया जिस पे हमें पॉइंट करना है। So this is the nucleus of the Gujarat elections 2022, and just like gaslighting is the word of the year, yeah. Ravan is the word for 2022 Gujarat elections. गुजरात हर चुनाव में एक नया शब्द देता है, हाँ इस बार का इस बात का शब्द रावण है। हाँ, जो राजनीति के विद्यार्थी होंगे वो 2017 सात मौत के सौदागर के लिए याद करेंगे, नीच के लिए, चाय वाला के लिए, वैसे इस इलेक्शन का ये शब्द हो गया जो इतिहास में लिख जाएगा। I think that's all for today's news, and for more such crisp conversations, discussions, keep watching Vibes of India. Thank you. thank you.